Good morning students, myself Jitendra Kumar Jain, PGD in Physics, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं, we have started already electrostatics. So in this video we are continuing the last topic and the chapter name is electric charges in the field. We are studying the first chapter and the topic name is for today is basic properties of the charges. And we have talked already about the charges and we know that the charges are the scalar quantities and the charges are measured algebraically only. Second thing about the charges, since charges are scalar quantities, the unit of charge is coulomb. Unit of charge is what? Coulomb. So now we are more talking about the basic properties of charges. The first property of charge is additivity of the charges. First property of the charge is what? Additivity of the charges. Means अगर आपको किसी सिस्टम पर बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हों and we want to calculate the net charge of the system, then this property is used. These charges which are distributed may be positive and negative. Then definitely to calculate the net charge of the system, net charge of the body, we can sum, and sum with sum the algebraic sum of the charges. Means the total charge of the body is the algebraic sum of charge present on the body. This is called additivity of the charges. Algebraic sum का meaning क्या? Algebraic sum means we will add these charges with sign, because charge is a scalar quantity, it is not a vector quantity. Then definitely we can add these charges with the sign. Means पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव में ऐड होंगी, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव में, एंड देन द फाइनल चार्ज विल बी कम आउट लाइक दिस. सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. दिस इज अ बॉडी वेयर 6q is positive charge, 4q is positive charge, 8q is negative positive charge, but minus 2q that is negative, minus 5q and minus 7q are negative charges. To calculate the net charge of the system, we can use this additivity of the charges, this property. and कैसे? the total charge q is, हम क्या करेंगे, जितने भी चार्जेस हैं उन सबको विद साइन यहाँ पर रख लेते हैं, और विद साइन रखने के बाद में जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना, सब पॉजिटिव को ऐड करें, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, देन नेगेटिव को -2 -5 -7 एंड -7 -14. तो 18 पॉजिटिव चार्ज है और -14 नेगेटिव चार्ज है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिमेनिंग विल बी +4q. मीन्स द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी व्हाट, 4q, एंड द नेचर ऑफ नेट चार्ज विल बी व्हाट, पॉजिटिव. अगर आप इसमें नेगेटिव चार्ज और इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली अगर मैं मान लो यहाँ पर एक और -5q का चार्ज ऐड कर देता हूँ, तो -5q एंड -4q गिव्स यू -q. मीन्स रिजल्टेंट चार्ज विल बी q बट ऑफ नेगेटिव नेचर, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अवेलेबल होगा. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, वी आर यूजिंग, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस. ये आपको ध्यान रखना है. एंड द मेन थिंग इज व्हाट, एल्जेब्रिक सम. ये वर्ड आपको ध्यान रखना है. एल्जेब्रिक सम मींस यू कैन ऐड द चार्ज ओनली विद साइन, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम केवल उनके मैग्नीट्यूड्स विद साइन यूज करने वाला है. ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी of charges is conservation of the charges. Conservation of charges means, as you all studied about the conservation of energy, and according to the conservation of energy, law of conservation of energy, energy cannot be created, energy cannot be destroyed, but it can be transferred from one system to other system. Similar concept is used for the charges. Conservation of the charges means charges cannot be destroyed, charges cannot be created or generated, but they can transfer from one system to other system. This concept, this property is called conservation of charge. Means in any physical or chemical reaction in this universe, charge cannot be lost, charge cannot be destroyed, and charge cannot be created. हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बट एक्सेस चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम जनरेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. इस बात का आप ध्यान रखना. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. मींस एवरी बॉडी हैज
द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हर एक चार्ज ऑन दी एवरी बॉडी विल बी कांस्टेंट, कंजर्व रहना चाहिए। ये जो लॉ है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है, सिमिलरली चार्ज कंजर्वेशन भी हर एक फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में फॉलो होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के। सपोज वी आर टेकिंग वेरी सिंपल इक्वेशन दैट इज Na plus and Cl minus. Na has one positive charge but Cl has one negative charge. Total charge of these reactants will be 0. Plus 1 and minus 1 will be net charge will give to 0 with the help of this additivity of the charges. After this reaction, product will be NaCl and NaCl has no excess charge, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो definitely we will write 0. तो before reaction net charge will be 0, after reaction net charge will be 0. So this reaction possible in universe in physical condition and chemical condition. Second example, if you are taking uranium 92 uranium 238, और अगर हम यहाँ पर इसका अल्फा डीके बात करें, जो अपन पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, अल्फा डीके की बात करते हैं, तो क्या होगा, जब रिएक्शन होती है तो 90 थोरियम 234 बनेगा एंड द 2 हीलियम 4 मींस 2 हीलियम 4 मींस व्हाट, इट इज अल्फा पार्टिकल, दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। तो इनके अगर अपन चार्जेस की बात करें तो चार्जेस आर 92 है बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन 90 एंड 2 फॉर हीलियम, तो 90 प्लस 2 92. तो टोटल चार्जेस विल बी रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस. तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज व्हाट? थर्ड प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, और इस थर्ड प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है, इस तरह की चीजें. थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. क्वांटाइजेशन का मीनिंग बहुत क्लियर है. जैसे आप एनर्जी क्वांटाइज करते हैं, एनर्जी क्वांटाइज मीन्स क्या कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इन द क्वांटास, यानी कि एनर्जी के बंडल्स की फॉर्म में आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं. सिमिलरली यहां पर अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो यहां पर बंडल्स तो नहीं है, बट यहां पर चार्ज की एक बेसिक यूनिट है. बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज व्हाट? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, you know, that is written as E, and this is value of this basic unit is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. तो ये जो अपन ने लिखा है E, small e, this E is the basic unit of charge, that value is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ट्रांसफर होगा. चार्जेस कैन ट्रांसफर ओनली एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस. मींस हम इस बेसिक यूनिट के पार्ट्स नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि चार्जेस E/2 की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, या E/4 की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, या E/8 की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, या 3E/8 की फॉर्म में ट्रांसफर. ऐसा नहीं होगा. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड only and only in the form E, 2E, 3E, 4E and so on. And similarly, negative charge can also transfer minus 2E, minus 3E, minus 4E and so on. Means this 1, 2, 3, 4 are what? Are integer multiple of the basic unit of the charges. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि we cannot divide the basic unit of charge. यानी always charges will be transferred in the integer multiple of the basic unit of charge E. That value is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. ये चीज आपको ध्यान रखनी. So we can write the total charge of the system Q is the integer multiple N of basic unit of charge. यहाँ पर आप प्लस माइनस साइन यूज कर सकते हैं. प्लस माइनस साइन कैसे यूज करेंगे? बिकॉज आपको दोनों तरह के चार्जेस को ट्रांसफर करना है. तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कि वी कैन ट्रांसफर the charge in the integer multiple of the basic unit of charge plus minus E. Q is equal to N, where N is equal to plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on. यानी जितने भी हैं 1, 2, 3 की फॉर्म में, यानी एज अ होल E कैन ट्रांसफर ओनली पॉजिटिव फॉर्म में एंड नेगेटिव फॉर्म में. E के आप पार्ट्स
नहीं कर सकते, ये चीज कभी ट्रांसफर नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। क्लियर? तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, कई बार टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कई बार इस तरह की चीजें अपन 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस इज इनवेरियंस ऑफ द चार्जेस। इनवेरियंस का क्या मीनिंग है वो अपने को देखना है। इनवेरियंस ऑफ चार्जेस का मीनिंग क्या? फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। इनवेरियंस का मतलब ये है कि चार्जेस की वैल्यू में कोई वेरिएंस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस चाहे स्टैटिक बॉडी के हों, चार्जेस चाहे जो मोशन में है बॉडी उसके हों, बट चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मींस इफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, अगर उस पर क्यू चार्ज अवेलेबल है और अगर दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ c, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ c, देन ऑल्सो चार्ज रिमेन्स इक्वल टू q, यानी कि चार्जेस की वैल्यू पर ऑब्जेक्ट की मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कंडीशन और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन चार्जेस विल बी सेम। चार्जेस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स चार्जेस किसी भी तरह से कंडीशन में हो, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द चार्जेस, चाहे वो रेस्ट पर है चाहे वो मोशन में है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ द चार्जेस। दीज आर द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। वन विल बी additivity of the charges to calculate the net charge, second one is conservation of the charges, third one is quantization of the charges, and the fourth one is invariance of the charges। और एक जनरल जो बिहेवियर है चार्ज का वो तो अपन बहुत बात कर चुके हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग, उनकी एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो तो बेसिक प्रॉपर्टी में काउंट होता ही है। तो इन चार्जेस के बारे में, इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार बन जाता है, 1 लाइन आंसर क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, वो बन जाता है कि राइट 1 प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। तो आपको इनमें से कोई भी एक, या एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि चार्जेस कैन बी ट्रांसफर ओनली इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज q। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल talk about the further topics. Thank you.